हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आईटी पैराडाइम पे। सो इन टुडेज न्यू वीडियो ऑफ एक्सेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वी शुड नो अबाउट दिस कॉलम चार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स टाइप, element, fill, border, labeling and adjustment. We will talk about everything that is included in this column chart. So we will start from a scratch and will reach to a beautiful end. Or in the other language, we are going to learn that how to customize a simple and boring looking column chart to a super attractive column chart. And I am sure by the end of this video, you will be able to create one of the most attractive, attention-grabbing infographic column chart in Microsoft Excel. It can be any version from 2007 till 2021, whatever version you have. So for this, watch the full video carefully only one time so that you need not to watch another time. So let's get started without any further discussion and let me take you to my computer screen. So here I am using Microsoft Excel 2016 version right now, and as I have told earlier, in this video we are going to talk about 6 main parts of a column chart in Microsoft Excel. So let's start from number 1, that is chart types. It simply means how many types of chart do we get if we are going for a column chart. अगर हम लोग एक column chart insert करने जा रहे हैं तो हमको कितने तरह के chart देखने को मिलते हैं. For this, let's insert a chart. Select any cell, go on insert tab. Here we have recommended charts. Now select all charts and you can see the column chart is already selected. अब इस column chart के अंदर हमको 7 different types of charts मिल जाते हैं. Number 1, 2, 3. इसमें से 3 जो हैं 2D column charts हैं and 1, 2, 3, 4 और 4 3D column charts हैं. यानी कि टोटल 7 कॉलम चार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं. इनके नाम से यहाँ पे राइट साइड स्क्रीन पे लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं. नाउ लेट मी इंसर्ट अ वेरी बेसिक कॉलम चार्ट. हियर वी हैव, क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज हाउ अ कॉलम चार्ट लुक लाइक. मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, और हमें से कई लोग यही चार्ट यूज कर लेते हैं जल्दी में एक चार्ट बनाने के चक्कर में, लेकिन ये उतना कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगता है. So that was all for chart types. Now let's move to chart elements. So what are chart elements? These are the objects that are present inside a chart. Like the chart title. यहाँ पे जो chart का title है वो English है. Next we have here the y-axis. Y-axis में हमारे पास कुछ values हैं 0, 10, 20, 30 यानी कि marks के groups हैं यहाँ पे. The next we have here the x-axis जिसमें कि students के name है. And the fourth, here we have the grid lines. You can see the gray lines. These are used to compare the columns. ये जो columns हैं उनको compare करने में help करती हैं. The fifth, the main part of this chart is these columns. ये determine करती हैं, इनकी height जो है हमको help करती है हर एक student का marks compare करने में. इसके अलावा हमारे पास और भी ज़्यादा chart elements हैं. On this plus symbol, here we have all the chart elements. What else we can add? Here we have एक्सेस टाइटल्स, यानी कि हम लोग एक्सेस को भी एक नाम दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव हियर डेटा लेबल्स. अगर हम चाहते हैं हर एक कॉलम की वैल्यूज उनके ऊपर उनके अंदर कहीं पे दिखे तो आप ये डेटा लेबल्स यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट डेटा टेबल. अगर आप चाहते हैं कि चार्ट में ही आपका जो डेटा है वो दिखे तो आप डेटा टेबल इनसाइड द चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हियर वी हैव एरर बार्स, लीजेंड्स एंड ट्रेंड लाइन. तो जितना जो एलिमेंट्स हैं हमारे चार्ट में, जितने कम एलिमेंट्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा चार्ट आपका अच्छा दिखेगा. ज़्यादा खिचड़ी कर देने से आपको ऐसा लग सकता है कि आपका चार्ट अच्छा दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. समझने वाले को बहुत ही प्रॉब्लम होती है अगर कोई चार्ट बहुत ही डेंस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो. और अगर हमको कोई भी एक चार्ट एलिमेंट ऐड या फिर डिलीट करना है तो हम बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं. तो अगर कोई भी चार्ट एलिमेंट हमको ऐड करना है, क्लिक ऑन दिस प्लस सिंबल एंड सिलेक्ट एनी एलिमेंट दैट इज लाइक डेटा लेबल्स. और जब डेटा लेबल्स हमने ऐड कर दिया है तो अब वाई एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसे डिलीट कर सकते हैं. नाउ सिलेक्ट द वाई एक्सिस, प्रेस डिलीट की, वाई एक्सिस गायब हो जाएगी. So that was all for chart elements. Now let's talk about fill option. ये जो fill option है वो किसी भी चार्ट में जान डाल देता है. इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चार्ट एलिमेंट का कलर चेंज कर सकते हैं. Let's have a example. यहाँ पे चार्ट टाइटल है हमारे पास,
उसको सिलेक्ट करके हम लोग राइट क्लिक करके फिल पे जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। इससे जो है और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव और व्यूअर का जो अटेंशन है वो डायरेक्ट चार्ट टाइटल पे ही जाएगा। इसी की तरह हम लोग चार्ट कॉलम्स, ये जो कॉलम है इसका एलिमेंट उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक, फिल एंड देन हियर वी हैव द कलर्स। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फिल ऑप्शन की मदद से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए फिल के अंदर, सो इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो यहाँ पे एक बकेट है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे सारे फिल्स के ऑप्शन मिल गए। सो फर्स्ट इज नो फिल, यानी कि अगर आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए तो आप नो फिल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, इससे सारा कलर जो है गायब हो जाएगा। देन वी हैव सॉलिड कलर, सॉलिड फिल एंड देन थर्ड इज ग्रेडियंट फिल। इससे जो है एक ही एलिमेंट में एक से ज़्यादा कलर आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको कलर चेंज करना है तो ये जो बार है, कलरफुल बार राइट साइड में, वहां से कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। यू कैन चेंज द कलर एज मैनी कलर यू वांट। इफ यू वांट टू ऐड वन मोर कलर, क्लिक इन द सेंटर ऑफ दिस बार। Here you can insert one more color like green. Now there are 3 colors in the same column. The fourth option here we have picture और texture fill. अगर आप चाहते हैं कि इन कॉलम्स में कोई पिक्चर ऐड हो जाए, कोई भी आपकी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहें तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी टेक्सचर। सो यहाँ पे आपको टेक्सचर के ऑप्शन मिल जाएंगे। इतने सारे टेक्सचर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है सो क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन। हियर वी विल गेट द ऑप्शन टू इंसर्ट द पिक्चर। वर्क ऑफलाइन, देन सिलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर। नेक्स्ट वी हैव हियर पैटर्न फिल। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉलम्स में कोई पैटर्न आ जाए, लेट मी शो यू लाइक दिस और दिस। एनी पैटर्न you want you can insert from here, and if you want to change the color of this pattern, here we have at downside the options to change the color. इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन है जो कि अपने आप जो डिफॉल्ट कलर्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वर्ट इफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव कलर्स हैं तो उसको अपने आप इन्वर्ट कर दे इससे। एंड देन द लास्ट ऑप्शन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन। अगर आपको कलर्स पसंद हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इससे हर एक कॉलम का कलर डिफरेंट हो जाएगा। वेरी कलर्स बाई पॉइंट, हर एक पॉइंट पे कलर चेंज हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर फिल ऑप्शन। यानी कि फिल ऑप्शन अगर आपको नॉर्मली यूज करना है तो आप चार्ट पे ही कहीं पे राइट क्लिक करके फिल कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस चाहिए, जिस तरह से ग्रेडियंट हो गया, पिक्चर और टेक्सचर हो गया, पैटर्न हो गया, या फिर वेरी कलर्स बाय पॉइंट, सो इन ऑप्शंस के लिए आप डबल क्लिक करिए तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर फिल ऑप्शंस इन कॉलम चार्ट। Now let's talk about the border. We can change the border of any element we want. So first of all, there is the whole chart. हम लोग अगर पूरे चार्ट का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो इस ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करें। आउटलाइन ऑप्शन पे हमको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। लेट मी सेट इट टू ग्रीन एंड अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ। हियर वी हैव द वेट एंड वी कैन इंक्रीज द साइज। इससे क्या होगा, जो पूरे चार्ट का बॉर्डर है हमने अप्लाई कर दिया है। इसी तरह से अगर हम लोग को हर एक कॉलम का बॉर्डर लगाना है या फिर कोई कलर चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, देन आउटलाइन ऑप्शन। इससे हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर आउटलाइन की जो विड्थ है उसको बढ़ानी है तो अगेन आउटलाइन, वेट एंड देन वी कैन इंक्रीज द साइज लाइक दिस, बट दिस इज लुकिंग नॉट सो गुड। अगर इसी बॉर्डर में आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी मैंने ऑप्शंस खोल रखे हैं। फिल को मैं क्लोज कर देता हूँ, इस बार लाइन सिलेक्ट करनी है एंड देन सिलेक्ट एनी ऑफ द दैट एलिमेंट फ्रॉम द चार्ट लाइक दीज कॉलम्स। यहाँ पे हमको फिल में जाके बॉर्डर्स में सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर हमको कोई भी लाइन नहीं चाहिए तो हम लोग नो लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव सॉलिड लाइन्स, मीन्स सेम कलर की सिंपल सी लाइन आपको मिल जाएगी। द नेक्स्ट वी हैव ग्रेडियंट लाइन। अगर आपको कलरफुल एक से ज़्यादा कलर वाली लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हैं। देन वी हैव ऑटोमेटिक, ये डिफॉल्ट कोई एक कलर चूज करके अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट हियर वी गेट सम मोर ऑप्शंस। लेट मी अप्लाई वन सॉलिड लाइन, लेट मी इंक्रीज द विड्थ
by using width option. The next we have here compound type. यहाँ पे हम लोग जो बॉर्डर का है स्टाइल स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं. Here we have many options, डबल लाइन, बोल्ड एंड थिन लाइन. सो यहाँ से हम लोग स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का. नेक्स्ट इसके अलावा भी हमको ऑप्शंस मिलते हैं. लेट मी सिलेक्ट इट टू नॉर्मल. यहाँ पे हमको डैश टाइप मिल जाता है. यहाँ पे अगर हम लोग को जो लाइन है, जो बॉर्डर है, वो डैश्ड चाहिए या फिर डॉटेड चाहिए या फिर इनमें से कोई भी एक पैटर्न चाहिए तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. लेट मी चूज वन. इससे जो है जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कॉलम का जो बॉर्डर है वो डैश्ड हो गया है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आता भी है, जो लाइक गेमिंग्स में आई थिंक जो लोग गेमिंग के लिए कोई कॉलम चार्ट बनाते हैं तो उनको ये पसंद आएगा. अदरवाइज यहाँ पे डॉटेड भी है, यहाँ पे सिंपल भी है और some more patterns are there. You can use any one of them. So that was all for border option. Now the next part is labeling, my favorite part. इसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो राइट वाला पेन था. अब लेबलिंग में हम लोग और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. सो लेबलिंग में हम लोग और क्या काम कर सकते हैं जिससे कि ये जो चार्ट है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे. सो इसके लिए मैं ये जो नेम्स हैं उसको डिलीट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग डिलीट की. अब नेम्स को हम लोग इन कॉलम्स के ऊपर भी शो कर सकते हैं. कैसे? नाउ गो ऑन दिस प्लस सिंबल एंड हियर वी हैव डेटा लेबल्स ऑप्शन. इसके बगल में एक छोटा सा ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पे कॉल आउट का भी ऑप्शन मिलता है. एक जो कॉल आउट है वो एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि आप नेम्स के साथ साथ मार्क्स दोनों ही चार्ट में दिखा सकते हैं बिना एक्सिस का यूज किए. यानी कि एक्सिस की हेल्प से नहीं, हम लोग कॉल आउट दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कॉल आउट्स पसंद नहीं आते हैं देन आप मोर ऑप्शंस में जाके थोड़ी सी सेटिंग्स कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू फ्रॉम सेल. हमको जो लेबल्स हैं वो सेल में से चाहिए. लेट्स सिलेक्ट इट एंड देन इट इज आस्किंग फॉर सिलेक्ट डेटा लेबल रेंज. अब हमको रेंज सिलेक्ट करनी है. सो हम लोग चाहते हैं कि नेम्स भी डेटा लेबल के बगल में दिखाए. नाउ क्लिक ऑन ओके. इससे क्या होगा, ये देखिए कॉलम्स के ऊपर नेम्स के साथ साथ मार्क्स दोनों दिख रहे हैं. ये हुई बात थोड़े से अट्रैक्टिव की, यानी कि इससे जो है चार्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है. यानी कि अब लग रहा है कि बहुत ही कम एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं और चार्ट प्रिपेयर हो गया है. इसके अलावा अगर हम लोग अभी ये ग्रिड लाइन भी डिलीट कर दें तब इससे चार्ट और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा. Isn't it? Let me delete this chart title also. Okay, so this was labeling. यानी कि हम लोग लेबलिंग जो है और भी अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं इस चार्ट के अंदर. Let me show you more options. यहाँ पे सीरीज नेम आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक डेविड इंग्लिश 45, यानी कि डेविड के इंग्लिश में मार्क्स 45 हैं. सो इस तरह से आप सीरीज नेम ऐड कर सकते हैं. रिमूव करना है तो इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दीजिए. इसके अलावा कैटेगरी नेम डेविड 45. सो ढेर सारे ऑप्शंस हैं. क्लिक एंड ट्राई और एक्सेल आपके हाथ में है. आप जितने ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर लेबलिंग ऑप्शंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे किस तरह के एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. अब जैसे कि अभी तक हम लोग जो चार्ट है उसमें केवल एक ही वैल्यू के साथ चल रहे थे जो कि थे इंग्लिश के मार्क्स. अगर हमको चाहिए कि हिंदी के मार्क्स भी इसी में इंसर्ट कर दें तो उसे कैसे करेंगे. तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है इस चार्ट को डिलीट करने की. हम लोग इसी चार्ट में हिंदी के मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं. नाउ राइट क्लिक ओवर द चार्ट. हियर वी हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट डेटा. इस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट साइड में एक बटन है ऐड बटन. इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आएगा, एडिट सीरीज डायलॉग बॉक्स. ये सबसे पहले मांग रहा है सीरीज नेम. सो यहाँ पे एक नेम दे देते हैं. हियर वी हैव हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी के मार्क्स ऐड करेंगे. देन वी हैव सीरीज वैल्यूज. यहाँ पे हमको उसके मार्क्स देने हैं. नाउ सिलेक्ट द सेल रेंज एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन अगेन ओके. सो आप देख सकते हैं इसी चार्ट में बिना डिलीट किए और बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए ये जो हिंदी के मार्क्स हैं वो भी आ गए हैं बिना फॉर्मेटिंग को बिगाड़े. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. इसके अलावा एडजस्टमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं,
Double click over the data. Let me show you. Double click over the data. Here we have some adjustment option. The rightmost option is the adjustment. We can use these options to increase the overlap or decrease the overlap. Means increase or decrease the gap between the two columns. And here we have the option to increase or decrease the width of the columns. Like this, we can increase or decrease the width of all the columns. So these are some more adjustment options that we can use to modify our column chart. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ ज़रूर करिए कभी भी जब भी आप एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करने वाले हैं, वरना चार्ट जो है 10 सेकंड में तो इंसर्ट हो सकता है लेकिन उससे वो मज़ा नहीं आता है, वो टेक्निकल फीलिंग नहीं आती है जो कि एक कंप्यूटर चलाने वाले को आनी चाहिए. सो यूज़ दिस ऑप्शंस इसीलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप लोग यूज़ करिए. दैट्स ऑल. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह की एक्सेल की ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएं और आगे भी मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. सी इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्सेल. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.